So Assalamu alaikum, everyone. We are well, Happy Women's Day to all the wonderful women out there that are fighters, that are making a change, and that are just making the world a better place. So today in this seminar, webinar, we are going to be talking about how women are breaking barriers, and specifically through financial empowerment, which is a very important topic, not just amongst Pakistani women, but amongst women all over. And today we are just going to be talking about some tools, understanding how we can do that, how women, there are other avenues where women can break these barriers. So with us, we have Nimra Majid. We have Maya Malik from Iran, and we have Vasila. Myself, Nimra, and Vasila are from UBL Fund Managers, and Maya Malik is from Iran. In this talk, we are going to be discussing about the financial well-being and how it empowers women and how it is essential for us, what our common dreams and financial goals are, and what impacts our savings, and how we can go about them, the difference between savings and investments, and what are the preferred modes of savings for women, and what kind of investments we can make very easily. We will also be discussing the options available, what exactly are mutual funds and investment tools, and how UBL funds can help you in fulfilling your dreams towards financial independence. So while our society is constantly evolving as women, we need to be aware of our options. We need to be aware of our surroundings. We need to see what is available for us and how we can achieve our goals. Amongst this is education of females. As we increase our education levels, we understand what is a better investment technique and how we can empower ourselves and gain more financial freedom. Being a mother is, an integral part of every family. And, we're making, as mothers, are making all the important decisions. And so they should also be able to achieve their own personal decisions and their financial decisions, which allows them to do more in life. So what are the financial inclusion of Pakistan's stats? More than half of our population are women, and we are a female-led country in terms of our population, yet only 3% of females have bank accounts as compared to 17% of the male population. Mobile wallets are increasing more due to the convenience factor. And for example, we have our UBL Smart Savings app. Maya will also future talk about the Iran app. So with the increase of technology, which is on our fingertips, we have a bunch of avenues and channels in which we can achieve our investments. I think Nimra can take over from here. Thank you, sir. Basically, slides को थोड़ा सा going forward आगे लेके चलते हैं. थोड़ा सा इसको concise रखेंगे because we have some shortage of time. We all have dreams. We all have dreams, which you can call as financial goals as well. Achha, for financial planning, you must know what are the basic steps you need to pursue. For example, first of all, you need a qualified relationship manager or relationship advisor that you will be seeing for managing your portfolios. Yeah, or he or she must have some knowledge about the markets for your short-term goals, medium-term goals, and long-term as well. So there are some list, or there are some goals primarily which a girl or a woman must have. First of all, you will be investing or saving for your emergency fund needs.
You will be investing or saving for yourself, higher education. There's a common goal, like for example, purchasing a car for yourself or your family, and you can be investing for your vacations planning, pilgrimage traveling, etc. Apart from that, if you are a married woman, you can pursue the investment for your children's future plans, for college and university, etc. There are some long-term goals as well, like for example, saving for your child, or building a house, or children marriage, your retirement, etc. These are some goals, or these are some common reasons that women must save, or women must start saving or investing from right now. Okay. Furthermore, first of all, let me discuss about a difference between saving and investment. Trust me, there's a huge difference between saving and investment. Agar if you are only saving your amount monthly or periodically, or as suits you, so you will be at a risk. The risk can be called inflation, or in other words, or in Urdu term, महंगाई. For example, if you are saving a proportion of your salary or your income in your bank account or at your home, and on even in your current account, so you will be investing the same amount over the period of time. Means you will not be adding any additional value to this. For example, अगर आप उस amount को just save करते जाते हैं, then you will not be adding any value. So या तो उसको inflation को beat कर सके, means उसकी जो intrinsic value होती है. For example, if you are consistently saving, for example, 20% of your monthly income, so at the end of the year आपके पास 20% of your annual income ही होगी. उस 20% से ज़्यादा कोई amount नहीं होगा. Rather, the session we are conducting today is हम आपको like educate कर रहे हैं कि you should start investing these amount in some sort of investment scheme. For example, you can invest in mutual fund, and there are other avenues as well. ट्रेडिशनली ख़वातीन जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा हुआ आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया बैंक में, टर्म डिपॉजिट इन्वेस्ट कर लिया. तो अगर आप बात करें, देयर इज अ ह्यूज मार्केट, और देयर इज अ ह्यूज एसेट क्लासेस जिसमें आप और का एक्सपोजर ले सकते हैं, अपने रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स को, मंथली रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज नो बाउंड्री फॉर योर इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिंगल एसेट क्लास नहीं है, देयर आर मल्टीपल क्लासेस. अगर मैं थोड़े बहुत नाम लूँ, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट अगेन, अगर इन जो ये प्रेफर्ड मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसमें डायरेक्टली जा रहे हैं ना, तो यू नीड टू गो PMX. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कमोडिटी मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. देन यू हैव टू गो फॉर द म्यूचुअल फंड. अगर आपने इक्विटी साइड पे जाना है, तो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके ब्रोकरेज हाउस के थ्रू अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. अगर आप नॉर्मल मनी मार्केट वाली सिक्योरिटीज लेना चाह रहे हैं, यू नीड टू गो टू ओपन अ बैंक अकाउंट. इस तरीके से आपको डिफरेंट मार्केट अप्रोच करनी पड़ेगी. बट बीइंग और लाइक कमिंग इन द म्यूचुअल फंड मार्केट और इंडस्ट्री, आपको एट वन प्लेस सारे ऑप्शंस और एसेट क्लासेस मिलेंगे. Like for example, you can invest in gold through us, you can invest in money market through us, you can invest in income classes. For example, government securities, जिसको हम PIBs, Pakistan Investment Bond, Treasury Bill वगैरह कहते हैं, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर दी सिंगल अम्ब्रेला. मीन्स आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं म्यूचुअल फंड में आने के बाद. और हेसल फ्री अकाउंट ओपनिंग और लाइक मैनेजमेंट प्रोसेस है इसका, वो फर्दर हमें भी आगे स्लाइड्स में अगर चलेंगे तो थोड़ा बहुत और उसको इसमें मैं थोड़ी सा पॉइंट्स ऐड ऑन करती रहूंगी. अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से अगर थोड़ा सा आप और आगे चलते हैं, तो म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली म्यूचुअल फंड्स आर इज अ सेपरेट इंडस्ट्री जो कि नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर आती है. इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट क्लासेस जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँ अगर मैं, तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल, if you are going for a PLS account, यानी आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो there must be a discrimination bank by bank. Means for example, HBL, UBL and NCB, there are different banks. अगर आप नाम लें तो ये different rates आपको ऑफर करेंगे. Whereas coming in the mutual fund, हमारे हर इन्वेस्टर को एक स्टैटिक रिटर्न होता है. मीन्स एक जनरलाइज या यूनिवर्सल रिटर्न होता है, जो एक पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के बाद उनको सिमिलर रिटर्न मिल रहे होते हैं. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन या अमंग इन्वेस्टर्स. सेकेंड, इसका एक मेजर बेनिफिट इज प्रॉफिट एंड जो रिटर्न है वो आपके इक्वल होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. थर्ड मोस्ट बेसिक एडवांटेज इज
managed by highly professional individuals. Basically म्यूचुअल फंड जो मैनेज किए जाते हैं बाय आवर फंड मैनेजर, दे आर हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स जो अपनी फील्ड या अपनी जो फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंड मैनेजर इक्विटी क्लास का है तो ही विल बी हैविंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट स्क्रिप्ट्स एंड इक्विटीज, इक्विटी मार्केट, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, उसके बारे में वो बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। ऑन एंड ऑफ एक इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पर उनको कोई डिसीजन लेना होता है। सो अगर आप एज ए इंडिविजुअल बात करें, एज ए वुमेन बात करें, आई माइट लाइक आर्ग्यू विद दैट कि आपके पास इतना टाइम होता होगा मे बी, बिकॉज अगर आप वर्किंग वुमेन है और अगर फिर आप हाउस भी देख रही हैं, हाउस होल्ड भी हैं, तो आपके पास इतना टाइम या इवन इतनी नॉलेज भी फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं हो पाती है, बिकॉज दीज आर सम लाइक जार्गन्स एंड दी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत टेक्निकल होती हैं। तो म्यूचुअल फंड में आने से हमें एक ईजी पीस ऑफ माइंड होता है, टाइम सेविंग हो जाती है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं वो ये है कि म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मींस देयर इज अ रेगुलेटर जो कि हमें रेगुलेट करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कमर्शियल बैंक को स्टेट बैंक रेगुलेट करता है। लाइकवाइज हमारी कस्टोडियन भी जो कि हमारे एसेट क्लासेस को एज ए ट्रस्टी एक्ट कर रहा होता है, विच इज सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। तो आपको यहाँ पे आने के बाद, म्यूचुअल फंड में एंटर होने के बाद, आपको फिर ये वाले रिस्क भी आपके मिटिगेट होने शुरू हो जाते हैं। मींस आपको कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं रहता। मींस आप एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं, प्रोसेस के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको विड्रॉल भी उसी तरीके से करते हैं। पीरियोडिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को या म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कहलाती हैं, वो थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर हमारे जो अकाउंट्स हैं या जो फंड्स की इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स हैं वो ऑडिट हो रहे होते हैं। तो आपका एक मतलब आप समझे माइक्रो मैनेजमेंट हो रही होती है इस प्रोसेस के अंदर। देन देयर आर लाइक फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस मिल जाती हैं। इसके अलावा एज लो एज विद 500 रुपीज आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइक एक ट्रस्ट का इशू है फॉर एग्जांपल इनिशियली, तो आप जस्ट अकाउंट ओपन करके इसके प्रोसेस को देखने के बाद, सीखने के बाद, जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे, प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज मोर देन 20 ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एंड अबव हमें हो चुके हैं जो कि हम एज ए यूटिल फंड मैनेजर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आप अपने मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल के उसको तसल्ली करने के बाद आप फर्दर उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं और योर लॉन्गर टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। एंड अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि एक प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट का, वैसे ही प्रोसेस होता है एक विड्रॉल का भी। सो यू विल बी एबल टू विड्रॉ थ्रू दैट प्रोसेस, मींस आप आपको सॉरी कितने लोग देख रहे हैं? 9 लोग देख रहे हैं, 10 इसमें से हम ही होंगे, है ना? ओके, थोड़ी सी टाइप्स की बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। जैसे मैंने एसेट क्लासेस बताया, देयर आर टाइप्स। मेनली ब्रॉडली आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एज ए मनी मार्केट प्रोडक्ट या मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कीम कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा देयर आर इनकम फंड्स, देयर आर एग्रेसिव इनकम फंड्स, देयर आर एसेट क्लासेस, मींस एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट होता है जिसमें आप मल्टीपल क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बैलेंस फंड्स आपके पास आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्विटीज फंड्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मींस आपको एट अ सेम टाइम आपको डिफरेंट 2 to 3 प्रोडक्ट्स की या 2 to 3 एसेट क्लासेस का एक्सपोजर एक ही प्लान में आने से मिल जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक प्लान्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो अपार्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको एक इंश्योरेंस का भी बेनिफिट अवेल हो रहा होता है। अच्छा, ये इंश्योरेंस दीज और तकाफुल का भी अगर आप एग्जैक्टली जी अगर शरीयत कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका तो आपको तकाफुल बेनिफिट अवेलेबल होता है। और मींस अगर कन्वेंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका तो आपको अगेन यकीनन इंश्योरेंस इसके साथ अवेल हो रहा होता है। Like there are some other benefits in by investing in mutual fund. You can accumulate your wealth and you can you can make your flexible investments periodically or throughout the time of your investment horizon. Then there's a benefit that there is a professional management, as I have told you. Again there is a diversification, means आप different asset classes में invest कर सकते हैं। So जो आपका risk mitigation होती है वो आपका risk diversified हो जाता है। Like you are not putting all your eggs in one basket, means आप एक ऐसे करते हो, मनी मार्केट का एक्सपोजर ले रहे हो तो आप equities का एक्सपोजर, आप commodity का एक्सपोजर ले रहे हो तो आपकी risk diversification की वजह से आपका risk mitigate होता चला जाता है। Then there is a higher liquidity option available with us.
जो कि शायद आपको मे बी अदर एसेट क्लासेस में अगर आप जाएं या डायरेक्ट मार्केट में जाएं तो ऐसा सच अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल इफ यू आर परस्यूइंग इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में अगर आप डायरेक्ट जा रहे होते हैं तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। इवन आप डायरेक्ट मार्केट में भी सिक्योरिटी बाय करने जाते हैं तो उसका एक प्रोसेस लंबा है। वेयर म्यूचुअल फंड में आप विद इन सेम डे भी एग्जिट कर सकते हैं, विद इन सेम डे भी एंटर कर सकते हैं। देयर आर सम प्रोडक्ट्स जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है, थोड़े से आपको 2 to 3 डेज के टाइम वाले प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपको लिक्विडिटी आपको मेंटेन रखते हैं आपकी। The most beneficial point is tax rebate, or you can say tax benefit. There are some tax benefits available with us. अगर कोई working woman है, उनकी salary जो है वो salary taxable है annual आपकी income. So उसका एक certain percentage है जो कि आप अपने tax का annual save कर सकते हैं by investing in mutual fund. इसके अलावा भी tax benefits available है हमारे पास, तो वो at the end of द सेशन मेरी दूसरी कलीग जो है आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी शेयर करेंगे, तो इन डेप्थ हम या ऑन लाइक डिटेल में बात 1-on-1 भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे पास लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट एक्विटीज में जा रहे होते हैं तो आपके पास एक तो मार्केट बहुत छोटी हो जाती है, मींस आपका इक्वेशन साइज बहुत लाइक स्मॉल हो जाता है रेलिवेंटली अगर आप पूल के थ्रू जाएं। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल है जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स आके अपनी मनी को या अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट को पूल करते हैं और एक क्लास में जाके या डिफरेंट क्लास में जाके इन्वेस्ट कर दो, तो हमारे पास एक ऑप्शन बड़ा अवेलेबल हो जाता है एज ए म्यूचुअल फंड, मींस इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा कवर हो रहा होता है, तो हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और अगेन जब आप वन टाइम एक बड़ा अमाउंट लेके जाते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट ऑब्वियसली कम होती है। एज एन अगर मैं 100 इंडिविजुअल की अलग अलग इन्वेस्टमेंट करूंगी तो उसकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू दिस वन सिंगल कॉस्ट ज्यादा होगी। देन द लास्ट एंड उसका एक बेनिफिट आप ये भी काउंट कर सकते हैं कि आपकी सेफ्टी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की आपकी। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस रेगुलेशन के एससीसीपी हमें रेगुलेट करता है, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट आवर कस्टोडियन व्हिच इज ट्रस्टी, सीडीसी हमारा ट्रस्टी है। So each and everything is transparent and easily accessible information available होती है हमारे clients के लिए. So these were the some benefits about mutual fund. इसके अलावा कोई चीज? या प्लीज सर, अगर आपके पास ये स्लाइड अवेलेबल है रिटर्न्स की हमारे डिफरेंट एसेट क्लासेस की, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। आई गेस स्लाइड नंबर 12। स्लाइड नंबर 12, ठीक। Okay, this is a one back. Yeah. Right, exactly. Thank you. अच्छा, ये थोड़ी सी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन एक्सचेंज व्हिच इज USD PKR, यानी आप अगर किसी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डेटा फॉर ओवर अ 2 decade. फॉर एग्जांपल इट इज फ्रॉम 2000 till date, means 28th February 2022, यानी ऑलमोस्ट 22 years इसमें कवर हो रहे हैं। तो अगर इसका आप रेट ऑफ रिटर्न देखें, अगर किसी ने USD डॉलर, जिसमें जो बहुत हाइप क्रिएट होती है कि डॉलर इतना इंक्रीज हो गया, डॉलर इंक्रीज हो गया, बट अगर आप उसको 22 years पे इसका रिटर्न देखें, इट इज ओनली 5.5%। मीन्स अगर मैंने 1 लाख रुपीज आज से कोई 22 years बैक इन्वेस्ट किए होते तो आई विल बी हैविंग 5,500 रुपीज एक्स्ट्रा, जस्ट 5,500 रुपीज ओवर 22 years। इसके अलावा whereas our average inflation is at least at 8.2%। इन्फ्लेशन का थोड़ा सा मैं आपको मतलब बता देती हूँ। बेसिकली इन्फ्लेशन ये होता है कि वो आपकी वैल्यू की, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी जो PKRV जो वैल्यू होती है, उसकी अमाउंट को उस परसेंटेज से डिक्रीज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 100 रुपीज राइट नाउ, आफ्टर ए ईयर उसमें 8.2% आपकी वैल्यू में डिक्रीज आ चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज राइट नाउ इज कॉस्टिंग यू 100 रुपी, आफ्टर ए ईयर वो आपको 108 रुपीज कॉस्ट कर रही होगी। तो 8.2% का मतलब इन इजी वर्ड ये है कि एक चीज अगर आपको अभी 100 रुपी की मिल रही है, आफ्टर जो ये इन्फ्लेशन का रेट बता रहा है ओवर 22 years, तो आपको आफ्टर 22 years वो 108 रुपए की अवेलेबल होगी। तो ये इन्फ्लेशन होती है जो कि आपकी इन टर्म्स ऑफ आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है आपकी मनी की या PKR की, उसकी वैल्यू को बाय टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको डिक्रीज कर रही होती है। इन्फ्लेशन अगेन ये एनुअल होता है। करंटली हमारे पास ये अभी तो डबल डिजिट में है, बट ये डेटा 22 years का, तो हम उसी से अभी कंपेयर कर रहे हैं। देन हमारे पास कुछ अदर रेवेन्यूज होते हैं फॉर वन। अच्छा, अब आप ये देखें, जो USD डॉलर इन्वेस्टमेंट है वो आपका जो नेट रिटर्न है या आपका जो नेट सरप्लस अमाउंट है वो नेगेटिव है अगर आप डॉलर से इसको कंपेयर करें। वेयरएज अगर आप उसको अदर रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल की साइड पे जाते हैं या नेशनल सेविंग्स, इवन गोल्ड
और थोड़ा लास्ट ट्रेजरी बिल्स और नेशनल सेविंग्स का बता दें कि ये है क्या। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल सेविंग्स के बाद डिफरेंट सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टेन्योर के, फॉर एग्जांपल 6 मंथ टू 10 इयर्स के अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है, इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन भी है कि कुछ सीनियर सिटीजन के सर्टिफिकेशन होती है जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होती है, कुछ जनरल पब्लिक भी इसमें लाइक अदर देन सीनियर सिटीजन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नेशनल सेविंग में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले रिटर्न्स मिल रहे होते हैं मोर और लेस। अगेन नेशनल सेविंग जो है वो एक तरीके से ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट होती है, तो उसका रेट कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है और फिक्स होता है ओवर डिस्काउंट रेट। अगर आपका डिस्काउंट रेट करंट जो चल रहा होता है उसी के आसपास का आपको नेशनल सेविंग पे रेट मिल रहा होता है। नेशनल सेविंग मेनली इन्वेस्ट करता है ट्रेजरी बिल में और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एवेन्यू है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा होगा। ट्रेजरी बिल बेसिकली एक शॉर्टर टर्म सिक्योरिटी होती है, लेस देन अ ईयर की। इसमें आपको 3 डिफरेंट होराइजन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का एक ट्रेजरी बिल अवेलेबल होता है, एक 6 मंथ का होता है, एक 9 मंथ्स का होता है, यानी 1 ईयर के अंदर आपके पास अवेलेबल होता है। अगर ट्रेजरी बिल की आप बात करें, ये एक लेस मतलब आप समझे लीस्ट रिस्क की सिक्योरिटी होती है ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। और ये एक एसेट क्लास ऐसा भी है जो कि म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लो रिस्क एप्टाइट वाला कोई क्लाइंट है या लो रिस्क एप्टाइट वाली कोई फीमेल क्लाइंट है या मेल क्लाइंट है, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन आवर म्यूचुअल फंड मनी मार्केट फंड। तो मेनली मनी मार्केट फंड्स की हमारी प्लेसमेंट विद बैंक्स हो रही होती है और ट्रेजरी बिल के साथ होती होती है। ट्रेजरी बिल अगेन एक गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज है, तो एक ट्रस्ट वर्दी सिक्योरिटीज होती है। आप समझ लें कि इसमें डिफॉल्टर रिस्क सबसे कम होता है। देन एक यहाँ पे कंपैरिजन अवेलेबल है गोल्ड की प्राइसेस से। तो अगेन आप अगर इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं तो आप गोल्ड से बीट कर पा रहे हैं, आप ट्रेजरी बिल से बीट कर पा रहे हैं, इवन आप डायरेक्ट एक्विटी मार्केट से भी बीट कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो जो फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर से, उसको आप बीट नहीं कर पाए। तो म्यूचुअल फंड में ये अगर आपने इन सबको अपने व्यू में रखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 5 to 6 एवेन्यूज दिखने हैं, आपको डिफरेंट जाना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में आने के बाद आपको ये सारी एलोकेशन, ये सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। मींस आपका एक ही रिलेशनशिप मैनेजर आपको इन सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा सकता है और इजी एक्सेस होता है। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप इजीली ऑनलाइन एक्सेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन आप अपना स्टेटमेंट डेली चेक कर रहे होते हैं, डेली की इसमें आपकी वैल्यू में इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको दिख रहा होता है, जिस हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया होता है जिस क्लास में भी। सो these were some points about mutual fund. अगर इसमें सहर या वसीला आप यहाँ से कुछ ऐड करना चाहें प्लीज। Sure. So, Vasila, maybe you can tell us a little more about UBL Fund Managers Limited, where it was founded. Vasila, आप म्यूट पे हैं। Is it fine? Actually थोड़ा internet problem हो रहा है यहाँ पे. Is it fine now? Now we can hear. जी, we can hear you. Okay. Is it why is my clear is? बिल्कुल सही है। आप continue करें। Okay, now we start from the UBL funds. Actually निम्रा ने जैसे इतना long discussion बता दी पूरी हमारे funds के हिसाब से. So we go through the now UBL funds कि UBL fund manager when it started and क्या है क्या चीज नहीं, वो सारी चीजें मैं cover करूँगी. So let's UBL funds जो है totally 100% on जो है subsidiary है UBL बैंक की। और एज एन AM हम देखे जाए तो AM नंबर 1 पे है, हमारी हाईएस्ट रेट जो है AM नंबर 1 है, AM1। और उसके अलावा जो है अभी राइट नाउ हम 86 प्लस अकाउंट जो है अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, अकाउंट सारे दिख रहे हैं 86K प्लस हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ अपनी टॉप प्रायोरिटीज पे आए कि हम पायनियर्स किसके हैं, टॉप पायनियर्स के जो चीजें हमने पहले स्टार्टअप की हैं वो है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है GIPS GIPS जिसे हम कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के कोई भी कंप्लायंट इशू या कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसमें हमारी MC उसको कवर अप करने में या फुलफिल करने में पाकिस्तान में सबसे पहले। देन उसके बाद हमारे पास कुछ एक्टिव एलोकेशन के फंड्स हैं, वो भी हमने सबसे पहले लॉन्च किए थे। देन कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स हैं CPPI, वो भी हमने सबसे पहले लॉन्च किए थे, पाकिस्तान UBL फंड्स ने पहले लॉन्च किए थे। देन हमारी MC ने सबसे पहले ETF लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड, और ये भी UBL फंड्स ने पाकिस्तान में सबसे पहले ऑफर किया था हमारे कस्टमर्स के लिए। देन नेक्स्ट इज टू दी हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं UBL फंड्स की जो कि लास्ट 22 ईयर्स से हम लोग अचीव करते आ रहे हैं। ये सारे हमारे
कुछ अवार्ड्स हैं लास्ट, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया गिफ्ट्स के बारे में, GIPS का अवार्ड है हमारे पास। हमारे पास जो है AM1 रेटिंग है, उसके बाद लिपर्ड फंड अवार्ड है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट के कुछ 5 अलग अलग डिफरेंट ICT के अवार्ड्स हैं हमारे पास। हम CIO 100 हाईएस्ट लेवल पे हैं। और उसके अलावा हमारा जो पोर्टफोलियो जिसे हम बोलते हैं, लाइक हमारा जो अब तक का पोर्टफोलियो है और जो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो तकरीबन 108 बिलियन प्लस AUM है, और जो हम रन कर रहे हैं इस वक्त अपने एसेट मैनेजमेंट के अंदर। जी, AUM बता दें, AUM stands for assets under management. Yes. So we are Yes. dealing with about 108 billion rupees of investments. Investments. नेक्स्ट, मैन हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन सवाल होता है कि हमारा सीक्रेट क्या है ऑफ सक्सेस, यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हमारा जो सक्सेस का सीक्रेट है, प्रूव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है। एक हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है कम्प्लीटली जो प्रोटेक्टेड है हर चीज से, और पूरा एक पैनल पे है। उसके बाद हमारे पास एक अच्छी हायरिंग टीम है परफॉर्मिंग, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अच्छे से करती है, और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को मतलब एक अच्छे से एडवाइस करती है कि आप किस पोर्टफोलियो के हिसाब से हमारे पास आ सकते हैं। देन उसके पास हमारे पास बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोसेस है, हमारे पास कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। और देन हम ग्लोबली इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस भी करते हैं कि जो भी हमारी ग्लोबली अलाइनमेंट आ रही हैं, जो भी चीजें हैं उसके साथ ही हमारा होता है कि हम उन्हीं के साथ ही चलते रहे, उन्हीं के साथ ही हमारी इन्वेस्टमेंट और प्रैक्टिस सारी चीजें होती रहे, ऑन ट्रेंड्स पे चलती रहे, ये सारी चीजें। Next, everyone know the vision and mission of the UBL funds. So vision जो है हमारा, be the best in class, most preferable investment situation provider, and our mission is like focus on superior returns, excellent customer services, need best products, जो already निम्रा ने आपको products बता दिए हैं, highest ethical and professional standards, educated public about investment management services while being accessible to both local and international investors, क्योंकि हमारे पास local investors के लिए भी है and international investment, both दोनों investors के लिए investment sectors मौजूद है। सेम अगर हम प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास 23 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के एसेट क्लास हैं, डिफरेंट मेजॉरिटी एसेट क्लास हैं। 8 हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, 2 हमारे पास पेंशन वॉलंटरी फंड्स के डिफरेंट एलोकेशन के हिसाब से, विच इज 5 एलोकेशन में आप डिवाइड कर सकते हैं उस प्लान को। देन हमारे पास इनकम पेमेंट प्लान है, जिसको हम आफ्टर आपकी रिटायरमेंट के बाद उसको हम इनकम पेमेंट प्लान में ले आते हैं, जो आपको मंथली इनकम आपके पास आ जाती है, जिसे हम सिंपली पेंशन प्लान कहते हैं। देन आपके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी हमारे पास है, जो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मेन चीज हमारे पास यूबीएल फंड्स में है अलमीन फंड्स, जो कि 100% शेयर कंप्लायंट है प्रोडक्ट्स उसमें सारे, और कुछ प्रोडक्ट्स आपको अभी निबरानी में भी तफसीली बता दी। और हमारे एडवाइजरी जो बोर्ड के एडवाइजरी है वो है मुफ्ती मोहम्मद हसन कलीम एंड मुफ्ती मोहम्मद नजीब दोनों, और वो जो भी हमारी शरिया कंप्लायंट के हिसाब से जो भी चीजें हैं वो सारी उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशंस से होती हैं। देन हमारे पास कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, जिस तरह निमरा ने लास्ट अभी कुछ फंड्स के नाम बता दिए, तो उसी हिसाब से मैं कुछ फंड्स आपको सिर्फ क्लियरली इतना बता दूंगी कि उन फंड्स का टाइम पीरियड कितना है, और वो फंड्स जो है कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, मतलब कौन कौन से चीजों में डिपेंड, मतलब लाइक एक हमारे पास जैसे इन्वेस्टमेंट हम तकरीबन 3 महीने से लेकर लॉन्ग टर्म पे भी आप जा सकते हैं। मिनिमम हमारे पास 3 मंथ्स की है, देन 3 to 6 मंथ्स के, देन लॉन्ग टर्म आप जा सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि काफी लोग कहते हैं कि हमें हाई रिस्क नहीं जाना, और वो एकदम से इन्वेस्टमेंट का सुन के ही, या यूपीएल फंड्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर एएमसी का सुन के एकदम सुनने ख्याल आता है सिर्फ इक्विटी फंड्स का। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में या एएमसी में सिर्फ इक्विटी फंड्स नहीं होते, यहाँ पर मनी मार्केट फंड्स भी हैं, इनकम फंड्स भी हैं, बैलेंस फंड्स भी हैं। मनी मार्केट फंड्स मतलब जो लो रिस्क पे हैं, जिन पे इतना हाई रिस्क नहीं है। इनकम फंड भी वो है जो लो रिस्क पे हैं, जिन पे इतना रिस्क नहीं है, वो मॉडरेट पे है। ठीक है, देन हमारे पास कुछ आ जाते हैं बैलेंस फंड, जिस बैलेंस फंड्स को हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ लाइक कुछ हमारे इक्विटी फंड्स आ जाते हैं, उसमें कुछ इक्विटी हमारी आ जाती है, और कुछ हमारे मनी मार्केट इनकम फंड्स के पोर्शंस आ जाते हैं, उसको हम बैलेंस फंड कहते हैं। देन फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड्स इक्विटी का भी थोड़ा, सॉरी वसीला, एक बता दें कि एग्जैक्टली इक्विटी है क्या?
देखिए बेसिकली इक्विटी वी आर कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। हम इक्विटी को कभी भी शॉर्ट टर्म फंड नहीं कहते और ना ही हम क्लाइंट को शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में आने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इक्विटी का जब भी एक्सपोजर लेना हो यू हैव टू बी क्लियर दैट आपको 2 to 3 years तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इक्विटी का आपको एक्सपोजर नजर ही 2 से 3 साल के बाद आएगा एंड यू सी कि आप बहुत, एक इक्विटी का ये होता है कि आप अर्न भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एकदम से आपका प्रॉफिट आता है। और अगर इक्विटी मतलब अगर शेयर्स नीचे आ रहे हैं, इक्विटी नीचे आ रही है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत उसमें लॉस भी होता है, क्योंकि हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर आप मॉडरेट साइड पे जाना चाहते हैं और आप रिस्क लेवल नहीं लेना चाहते तो इट्स बेटर आप मनी मार्केट और इनकम साइड भी आ सकते हैं। बट फॉर इक्विटीज इट्स बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको 5 साल के लिए या 3 साल के लिए कोई होल्डिंग पीरियड है, गो फॉर द इक्विटी, इट्स गुड। देन हमारे पास जैसे कुछ प्लान्स हैं, लाइक हज प्लान है हमारे पास, चिल्ड्रन सेविंग प्लान है। अगर कोई मदर है वो चाह रही है कि अपने बच्चों के लिए कोई सेविंग करना चाहती है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो, या चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चिल्ड्रन सेविंग करना चाहती है, तो वो इस चिल्ड्रन सेविंग प्लान में हमारे पास इजीली आ सकते हैं। देखिए ये प्लान में आपको एक चीज क्लियरली बता देती हूँ कि इस प्लान में आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एक तो कोई हिडन हो, सारी चीजें फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि ऐसा नहीं है कि आप 2 साल 3 साल 5 साल तक इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे पास हर साल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें और फिर समटाइम ऐसा होता है ना कि 1 साल 2 साल आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, मतलब कोई पैसे आपके पास कुछ कैश अमाउंट नहीं बच रहा, तो आप उस टाइम छोड़ भी सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप वो इन्वेस्टमेंट उस साल छोड़ देंगे तो आपकी कोई डिडक्शन हो गया कुछ, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पर आपका प्रॉफिट डे टू डे बनता रहेगा। सो इट्स रियली गुड कि अगर आप चिल्ड्रन सेविंग प्लान और इस तरह के प्लान्स में जाएंगे, क्योंकि प्लान में ये होता है कि एक तो आप थोड़ा थोड़ा करके सेव करते जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है, और लॉन्ग टर्म लाइक 5 to 10 years 20 years तक तो इजीली आराम से आप कर सकते हैं। एज इट इज सेम हमारे पास पेंशन फंड्स भी हैं। पेंशन फंड्स में उन्हें सजेस्ट करूंगी जो 40+ या 50+ से जो हमारे पास लेडीज हैं और वो चाहती है कि 60-60 के बाद हमारे पास कोई इनकम आती रहे, सो इट्स अ बेस्ट बेटर, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक ये फंड है कि आप 10 साल में 20 साल में जितना भी थोड़ा थोड़ा करके जमा करना चाहती हैं आप उसमें जमा कर सकती हैं। नेक्स्ट आपको 60 के बाद आपको इजीली इनकम पेमेंट प्लान के थ्रू जो है मंथली आपको एक इनकम मिलती रहेगी, और आपको ये भी होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपका रिटर्न भी बनता जा रहा है। सो इट्स रियली इजी कि आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगी तो ही एक होता है ना कि आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, विदाउट दैट आप सेविंग्स नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है मेन प्रोडक्ट इज लाइक मेन थिंग इज के हमारे पास आप लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है। और आप हमारे साथ इन टच कैसे रहें और आप हमसे मतलब किस तरह रब्ता कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप तो आजकल मोबाइल सबके पास है, एवरीवन हैव मोबाइल, चाहे वो एंड्रॉइड मोबाइल हो चाहे वो टच मोबाइल हो, जो भी हो सबके पास मोबाइल्स अवेलेबल है। सिंपल आप SMS कर सकते हैं हो हमारे या पास, किसी फैमिली मेंबर के पास भी हो। एग्जैक्टली मोबाइल ऐसी चीज है कि आजकल तो हर किसी के पास, आई थिंक किसी बच्चे के पास भी आजकल मोबाइल जरूर होता है। सो इट्स बेटर, हाँ, तो आप सिंपल SMS कर सकते हैं, इन्वेस्ट 8258 पे आप हमारे पास भेज दें। हमारे कोई भी कॉल सेंटर से जो है हमारे एडवाइजर या कोई भी आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी नीड के हिसाब से आपको सारी चीजें गाइड कर देगा। सेकंड हमारे पास कॉल नंबर है, टोल फ्री नंबर है 0800-00026 और 0800-2666। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.ublfunds.com, और उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेजेस भी देख सकते हैं। आप हमें मैसेंजर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारे केयर कॉल सेंटर पे कस्टमर केयर पे भी आप ईमेल कर सकते हैं, customer@ublfunds.com पे भी जा सकते हैं। आप हमारी जो है जो भी हमारी UBL की ब्रांचेस हैं जहाँ भी आप वहाँ जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। न्यूली अभी हम आपकी जो भी UBL के बैंक अकाउंट्स या जो भी हमारी जो अकाउंट है लाइक ऐप है उसमें हम अभी डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सून। अभी आई थिंक विद इन 7 to 10 days में आ जाएगा, राइट सर? आई थिंक अभी नियरली जी, it's expected by March. या तो ये सून जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको एप्लीकेशंस में हमारा डिजिटल अकाउंट्स नजर आएंगे, तो इट्स इजी, पेपरलेस है और सिंपल आपको एक NIC उसके ऊपर स्कैन करना पड़ेगा एंड देन आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। सो कोई उसमें पेपर डॉक्यूमेंटेशन कोई या एग्जैक्टली, तो उसमें कोई भी ऐसी पेपर वाली कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल आप बोलेंगे वन हैंड वो जिसे हम कहते हैं कि एक ये इसमें हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी।
अगर हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं तो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स भी जिस तरह है, कुछ ऑनलाइन चीजें हमारे पास, मतलब आप ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास कर सकते हैं, चेक के थ्रू भी कर सकते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट, लमसम अमाउंट भी हमारे पास आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या SIP का मतलब है आप थोड़ा थोड़ा करके भी हमारे पास लमसम के साथ या थोड़ा थोड़ा करके भी आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक आप मंथली करना चाहें, डेली करना चाहें, इट्स अप टू यू, आप जितना अमाउंट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। Starting with 500 rupees, so we have kept it very That counts. affordable कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। 500 से लेके जितनी भी आपकी अमाउंट है जो आप जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सर देखिए ना, 500 रुपीज से ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आज आपने बिल्कुल। 500 सेव किए तो कल हो सकता है आप 1000 सेव कर लें, उसके बाद आप इस तरह सेविंग करते करते इजीली सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी जी। कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं ट्रांजेक्शंस के हवाले से। एक तो हमारे पास ऐप है, मोबाइल ऐप इजीली, हमारे पास दोनों एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड भी एंड ISO भी। उस पे आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, उस पे आप अपने स्टेटमेंट देख सकते हैं, और टैक्स वाले जो अपने सर्टिफिकेट्स अपना वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का रेट, रिटर्न, सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं सिंपली। उसके बाद फिर हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी जाके आप साइट से ये सेम कर सकते हैं। ट्रेली ट्रांजेक्शन के हिसाब से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी SMS करके आप अपना SMS बैलेंस वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इवन अब तो हमने व्हाट्सएप सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी है, और अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप से भी मैसेज करके नंबर, और आप इजीली अपने स्टेटमेंट, क्यूरीज, कोई भी चीज हो आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। व्हाट्सएप तो आजकल सबके पास अवेलेबल है, तो आई थिंक व्हाट्सएप इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वही सारी चीजें सेम है। आपको कॉल करने के लिए हमारे ये टोल फ्री नंबर नजर आ रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। SMS के लिए आप हमें SMS कर सकते हैं। वेबसाइट भी आपके पास हमारी नजर आ रही है, आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, हमारी विजिट कर सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी क्यूरी हो उस हवाले से। इसके बाद सर लास्ट स्लाइड्स पे आ जाइएगा। अच्छा, इसके बाद ये हमारा कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्लेमर है, आप ये भी देख सकते हैं हमारा। सो एवरीथिंग, जिस तरह निम्रा ने पहले कहा था अपनी प्रेजेंटेशन में कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिडन हो। सारी चीजें, हमारे जो एडवाइजर्स भी आते हैं वो आपको 1 to 1 हर एक चीज बताते हैं, चाहे वो आपके फंड के हिसाब से हो, फंड के लोड के हिसाब से हो, या आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इट्स अप टू योर नीड, हम आपकी नीड के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि ये आपकी नीड है, इस हिसाब से आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो एडवाइजरी होती इसीलिए है कि ताकि हम आपकी नीड्स को देखकर आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से फुलफिल कर सकें, वरना तो फिर एडवाइजरी की जरूरत ही नहीं है अगर हम आपको सही से गाइड ना कर पाए। एनीथिंग Sahar or Nimra? Well, thank you, Nirma and Vasila. And now I will give the screen to Maya to share some techniques through them. Hello, Assalamualaikum everybody. Firstly, happy Women's Day to all of you, and thank you all for sharing this presentation. Definitely very insightful, especially जो आपने बात शुरू की कि पाकिस्तान में unfortunately financial inclusion, यानी कि कितने लोग financially included हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनके पास एक्सेस है कि वो इन्वेस्ट कर सके, उसमें से सिर्फ 3% खवातीन हैं, जो कि एक बहुत ही सैड, एक बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट है। और स्पेशली वुमेन्स डे पे आ जाके इट इज समथिंग दैट वी डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट एंड चेंज। उड़ान की बुनियाद इसी तरह हुई थी कि जब हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया, और हम लोग एक फीमेल फाउंडेड कंपनी है एंड वी आर वुमेन फर्स्ट एज वेल। तो हमारा जो मकसद था वो यही था टू अंडरस्टैंड कि व्हाई, क्यों है ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ 3% खवातीन financially included. It's a big question, and that's where we started researching, and we realized that it's because finances के बारे में बात नहीं किया जाता। हालांकि औरत और the females, they are the budget makers of the household. They are the ones that are holding on to the money. They start thinking about things and they start saying कि मैं अभी 25 की हो गई हूँ, मुझे सेविंग करनी है, मुझे आगे अपने कुछ खर्चे खुद अपने हाथों में लेने हैं। मैं 30 की हो गई हूँ, मुझे सेविंग करनी है क्योंकि आगे मेरे बच्चे पैदा होने वाले हैं। मैं 35 की हो गई हूँ, मुझे सेविंग करनी है क्योंकि मुझे आगे अपनी गाड़ी खरीदनी है या मुझे घर के खर्चे उठाने हैं। So she is thinking about all of these things, but she does not invest and she does not have access to bank accounts. So that is a big problem, and we are trying to solve that problem. So I'll share briefly about
what Udan is, and I'll tell you how we're trying to solve that problem. Can you guys see my? I think I need to share this. Yes. Okay, one sec. Oh, sorry. I need to present this. Yes, so that's how Udan, the concept of Udan started. कि हम लोगों ने ये change करना है. We want to change and we want to make money simple and easy for everybody, all Pakistanis, especially women. And women make the biggest part of our population. So why not make it simpler and easier for them? Because what we realized is कि खवातीन इन्वेस्ट नहीं करती, खवातीन पैसों के बारे में बात नहीं करती, सेविंग के बारे में बात नहीं करती, because they don't feel empowered enough. जैसे कि आपने भी बात की थी कि there's a lot of jargon that goes into money and savings and investment. And वैसे ही एक औरत जो है वो घर से बाहर निकलती नहीं है to go to the bank again and again and to go and like open account again and again. It's difficult for her. It's difficult for most of our Pakistani population. So how do you make it easier for them? How do you make it simpler for them? And that's how we started. And for us, our audience has been all of Pakistan, but women first. So it's housewives, it's mothers, it's students, it's entrepreneurs. It is all females that are really essentially looking to take control of their finances, and they're across Pakistan. Because what we provide to them is through our app, you can sign up and you can start saving. You don't have to go anywhere. You just start there. And that's really the start of it. Understanding के सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम था ना वो ये था कि एक तो हम लोग बात नहीं करते, हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करते. Forget about कि किसी बैंक से क्या बात करें या कि उड़ान से क्या बात करें, हम आपस में ही डिस्कस नहीं करते कि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे जो है अपने आगे गोल्स पूरे करने हैं, मैं कैसे उनको डिस्कस करूँ. ये एक टैबू समझा जाता है, तो उसको कैसे ब्रेक करें. तो हमने उड़ान की कम्युनिटी बनाई जिसमें females can come and talk about their finances and we can help them support that in whatever way possible. What we realized is that every female or male or whoever you are, whichever stage of life you're in, you have a money journey. And Udan essentially wants to support everybody in that money journey, that okay, you start earning and then you're going to start saving. And जैसे आपने बात की कि when you become an income earner, आपने अभी earn करना शुरू किया है, आपको उसी वक्त save करना बहुत जरूरी है. ठीक है, चाहे it's a small amount, 1000, आपने कहा म्यूचुअल फंड्स में 500, as low as 500 you can start, which is amazing, right? Like आप 5 छोटी सी अमाउंट से आप सेव करना स्टार्ट करते हैं, and then you start thinking about, okay, how can I invest that money, or how can I take a significant chunk of my earning, put it to the side into a mutual fund or any investment and help it, like allow it to grow. So that's something we understood, and that's something we want to simplify for all women everywhere. And this is where we get a lot of questions. हमारे पास कोई आती है खातून, तो वो पूछती है कि मैंने पैसे सेव करने, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या मेरे पैसे सेफ हैं यहाँ पे, क्या मुझे जो है कोई लेकिन इनको भाग से नहीं जाएगा, इस पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सारी चीजों के सवाल आते हैं. लेकिन मुझे सेविंग करनी है अपनी, मुझे जो है आगे अपने बच्चों के स्कूल के लिए सेविंग करनी है, मुझे जो है ट्रैवल के लिए सेविंग करनी है, मुझे डिफरेंट चीजों के लिए सेविंग करनी है. हाउ डू आई डू दैट? And that's essentially what we try to understand. And like all of us, ठीक है, आप लोगों ने बताया कि there are different kinds of goals that we have, right? Like हर इंसान के different goals हैं, and they all fall under these 3 buckets, which is you're saving for an emergency, you're saving to buy something immediately. आपको शायद अभी 5 महीने में नया टीवी लेना है, या अभी 8-10 महीने में बाइक लेनी है. It's a short-term thing. Or you're saving for that future. So you fall in that journey and you're saving for any of these things, which can really be divided into short-term, medium-term, and long-term. And it's so important कि आप अपनी जिंदगी को देखें और आप देखें कि मैं इसमें इधर किधर हूँ. ठीक है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी सेविंग को भी उसी तरह करेंगे. ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग करें तो आप उसको गोल्ड में नहीं डालेंगे,
आप उसको म्यूचुअल फंड में डालेंगे, बिकॉज आप उसको छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर सकती हैं और आप उसको किसी भी टाइम पे निकाल भी सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करें तो देन इट डिपेंड्स, यू कैन पुट इट इन म्यूचुअल फंड बट यू विल पुट इट इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड. So it's very important to understand where are you standing in your journey, where are you standing in your life, and what fund, what tool, what assets will suit you. And that's something that people don't ask, especially women, they don't ask. And that's something we want to simplify, like UBL wants to do it. Quran is the same. We want to simplify this part of your life for people so that they don't ever have to hesitate in asking that question. And there should be no hesitation. We speak about, बहुत से लोगों को ना हेजिटेशन होती है पैसों के बारे में बात करने के लिए. जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने इसी तरह बहुत सी डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों में लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर ट्रेनिंग की थी. और वहाँ पे जो सिंपल सी एक बात है ना, ये कि यू डोंट हैव टू बी अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है टू बी गुड एट मैनेजिंग योर मनी. You just need to follow some basic principles and you can manage your money. It's simply about managing your income, which comes down to how do you save, right? ये नहीं कि मेरी income आई मैंने सारी spend कर दी, या वो जो एक classic problem होती है जो कभी कभार मेरे साथ भी होती है, वो ये कि महीना जो है वो खत्म नहीं हुआ लेकिन मेरी सैलरी खत्म हो गई. ऐसा होता है कि नहीं होता? We all face it. I know that we all face it, and then you wonder कि क्यों खत्म हुई है, but then you don't really think about कि मैं तो हर रोज बिरयानी order कर रही हूँ lunch के लिए. So of course that comes in managing your income. That's the first step. अगर आपने ये step ही नहीं follow किया तो forget about doing anything else. You have to manage your income. Then if you're taking out credit or debt, that's something you need to prioritize. That okay, if I'm taking out credit, या मैं कहीं से I'm taking out a loan or any sort of like credit asset, then I have to prioritize repaying it. ठीक है. अब मैंने इमेजिन कर लें कि आपकी इनकम भी बहुत अच्छी हो गई, आपकी सेविंग भी स्टार्ट हो गई, आपने क्रेडिट भी नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आपने अपनी इमरजेंसीज के लिए सेव नहीं किया, और हम कराची में रहते हैं, आई थिंक आप लोग सभी कराची में रहते हैं, जब भी कराची में बारिश होती है तो जरूर खर्चा भी होता है. Is that true? Because it's a rainy day, and like in this world of finance as well, rainy days means that anything can happen, and at that point you will need that extra chunk of money that you should be prepared for. Similarly, once you're prepared for that, then you can start thinking about how am I going to make my savings grow. What chunk of money can I save in a mutual fund? What chunk of money can I save in a different investment, like you were talking about treasury bills, right? So that can grow for my future. These are some very important questions, and these need to be addressed. These need to be answered based on your where you stand in your life. Another something that you spoke about investment, and you spoke about how investment अगर आपने नहीं की तो आपके पैसे they're just going to be eaten away by inflation, right? Another flip side to that is that if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until the day you die, which is a very, very good quotation. And basically what it means is that you have to start planning. You don't want to keep working the rest of your life to earn money, right? You want to reach a point where your financial money, independence. Yes, your money is making money for you so that you can also retire and also enjoy your life. And that can only happen if you have been smart and you started investing early, and you've been smart with your investments, and you're managing your money. So these are some of the things that we at Uran are doing for women, where we advise them, we coach them. And one thing that I want to talk about is that we've actually partnered with UBL, and what we are doing is that we are allowing women from our platform to open mutual fund accounts with UBL. This is in a pilot phase, and inshallah we will be launching that very soon. And this is something about I thought I'd talk about in terms of investment is I think you covered about it, but 4 basic principles that you need to keep in mind when you are deciding
कि मैं कहाँ पे invest करूँ, right? There are a lot of options. So if people think that there are no options, कैसे करें invest, कहाँ पे करें invest, there are lots of options. The question is कि what option is best for me? That's the question that you need to start asking. It's risk. You have to see कि आपकी risk appetite कितनी है. बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरी risk appetite ज़्यादा है, मैं risk ले सकती हूँ. So there are options for you. Then it's obviously return. You have to see the amount of return you're getting. It's liquidity as well. Liquidity simple लफ्जों में इसका मतलब है कितनी जल्दी आप उस asset को cash में convert कर सकते हैं. ठीक है, ये इस चीज का liquidity का मतलब ये होता है. So for example, अगर आप mutual fund की बात करें तो आप पैसे डालते हैं उसमें and you can take out money within a day or 2 days, right? Am I right? If you were to withdraw money from a mutual fund, it would take maximum 1 to 2 days. Like starting from the 1 day till like 2 to 3 days, 3 working days, maximum 3 working 3 working days. It's not as illiquid as investing in property, for example. Property is not very liquid. It will take you lots of time to कि अगर आपको वो पैसे convert करने property को convert करना है cash में तो उसमें बहुत time लगेगा. Mutual fund में 2 to 3 days maximum लगेंगे. Savings account में एक दिन से भी कम, एक मिनट से भी कम लगेगा. You know, so liquidity matters. ठीक है, so for example, you have a very short term goal कि 2 महीने में मैं जा रही हूँ vacation पे हुंजा और मैं अभी से save करती हूँ उसके लिए, तो वो पैसे आप कहीं लॉक नहीं करेंगे, आप उसको किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे आपको रिटर्न मिले and you can take that money out immediately. So you have to tie your saving method to the goal that you are saving for, and most importantly, inflation. Because if you are not protecting your money from inflation को समझने का एक सिंपल सा तरीका है. ठीक है, आज से कोई 2-3 साल पहले आप 1000 रुपए में 4 चीजें खरीद सकती थी मार्केट जाके. आज आप 1000 रुपए में 3 चीजें खरीद सकती हैं. That's what inflation means, because prices are increasing and आपकी जो capability है उसी पैसे की वैल्यू कम हो गई है. आपकी capability to purchase things कम हो गई है और वो कम होती ही चली जा रही है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से उस पैसे को प्रोटेक्ट करें, उससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले ताकि आपकी कैपेबिलिटी जो है वो उतनी ही रहे. इन टर्म्स ऑफ उड़ान एक सवाल है, आई डोंट नो, मैं देख नहीं सकती कि कितने लोग हैं ऑडियंस में, बट आई वुड जस्ट वांट टू आस्क मोस्ट ऑफ द ऑडियंस कि मोस्ट पाकिस्तानीज how do, like, if you think about like what's the common way to save in Pakistan, can somebody like can get some answers? What is the common way to save in Pakistan? Like, what do you think? Well, it is definitely committees, because committees can like range from like a widespread of classes, social classes. Yeah. Who else? VCs. Yeah, I'm hearing one more. Can I get more answers? So many people online, only one person answering. Come on. For me, it would be like in price bonds or something. I would keep it like. Okay, but the question is, what do you think? How do most Pakistanis save? Like, cash at hand. Okay, so one of the things that we understood at Uran was when we researched, we found out the majority of Pakistanis, or at least 41% of the population, actually saves through committees, especially women, because they don't have access to bank accounts. जैसे हमने बताया कि सिर्फ 3% खवातीन हैं जो banking sector में हैं, the rest of them don't. So the only way they know how to save money and the only way they know how to access access finance is through committees. And that is the concept that we took and we decided to digitize it. And that's what Uran essentially does, is that we have digitized the concept of committees. So you can start saving in committees, and it's a digital platform completely. You can you can start with a minimum amount of 1,000 rupees. You can apply and you can decide कि मुझे कौन सा slot चाहिए, and we will find that group for you and we will verify everybody and put you in that group. So the two things that we are really working on is
like digital committees, and alhamdulillah we have a massive community on Facebook, so anybody can join that. It's called Uran Community. And the second step, which I'm really excited about, is that we have with UBL, we want to create a platform where women can actually start investing into mutual funds and start growing their money. So these are these based on the concept of wealth is very simple. It's that what is that thing that is acceptable, and what is that, how can you simplify finance, right? And so that's why we took committees, because committee is an acceptable concept जो कि हर कोई करता है, और अगर कोई नहीं करता तो उसके जरूर उसके घर में कोई ना कोई करता है. And we decided to change that, and we decided to digitize that. And in addition to that, we decided to guide women on how can they save and invest to achieve their goals. So yeah, so I'd like to take any questions if anybody has any. There was one question that said, how to manage savings on a longer run, which I think we have covered in great detail. Maya, does Uran also offer like more longer term savings? At the moment, our savings plans are, which our committee plans are for 5 months and for 10 months. But of course, if you are to invest in the mutual fund, then that is completely up to you. Because committees don't have a return on them, so we cap them at 10 months. But for the mutual fund options, you can do it for as long as you would like to, and there is no cap on the maximum amount. You can start, like you said, with minimum 500. What we do is that we've made it digital, so you can apply online through the Uran app, and you can especially for committees, you just have to download the app and submit an application, and within 5 days you'll be accepted, and you can start saving basically. Okay, that's great. So Tazeen is also a member of our team. Tazeen, एक और question है that how can we deposit online funds in our own UBL account? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं क्लैरिटी पहले कर दूं. अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि ओन यूबीएल अकाउंट, तो यूबीएल बैंक अकाउंट इज डिफरेंट एंड यूबीएल फंड मैनेजर्स इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, जैसे स्टार्ट में निम्रा ने भी एक्सप्लेन किया था कि हम एक सब्सिडरी हैं यूबीएल की, और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है. तो अगर ये क्वेश्चन है बैंकिंग के हवाले से, तो वो एक अलग चीज होगी, सिंपल बैंकिंग प्रोसीजर्स फॉलो होंगे. लेकिन अगर यूबीएल फंड मैनेजर्स का ही ये क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर देती हूँ. हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, और इन डिफरेंट चैनल्स के अंदर हम चेक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब हमारे पास एक डिजिटल अकाउंट की सर्विस अवेलेबल है, जो एज सून एज पॉसिबल हम ये लाइव करने जा रहे हैं, उसके थ्रू अकाउंट ओपन हो सकता है, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है एसईसीपी ने सहूलत अकाउंट के नाम से. तो वो हमारे पास भी आ जाएगा. डिफरेंट एएमसी ऑफर करना स्टार्ट भी कर चुकी हैं. इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं. जी sorry. ये मैं बस like trying to say that the name of this app is UBL Smart Savings app, जो Android और iOS दोनों पे available है. जो actually ये sorry like तज़ीन जो कह रहे हैं is that through जब ये UBL bank account holder हैं, तो through that how can they invest in UBL funds? अगर UBL अकाउंट होल्डर आप ऑलरेडी हैं, तो फिर UBL की जो अपनी ऐप है, जो उसकी नेट बैंकिंग का पोर्टल है या ऐप है, दोनों के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. 2 ऑप्शंस हैं उसके अंदर. अगर आप UBL के अकाउंट होल्डर हैं, तो फिर तो आप डायरेक्टली अपना अकाउंट वहां से ओपन कर सकते हैं. पोर्टल पे ऑप्शन मौजूद है ई अकाउंट ओपनिंग का, और सिमिलरली ऐप जो है वहां पे ऑप्शन मौजूद है वेल्थ मैनेजमेंट का. तो वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू वहां से आप अपना कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग की जो जर्नी है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आप उसको जस्ट फॉलो करेंगे तो वो आपको स्टेप्स ही खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो वो आप फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सेकेंडली, हमारा कॉल सेंटर नंबर अवेलेबल है, इसका 0800-00026. अगर आपको किसी भी स्टेज पे कोई इशू है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं.
बिल्कुल। वैसे एक यूबीएल की और ऐप के अंदर वेल्थ हम्म, मैनेजमेंट के ऑप्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी। And another question was, how do we compare ourselves with NIT? निम्रा, अगर आप आंसर कर लें। ओके, थैंक यू। अच्छा, बेसिकली एनआईटी मींस एक ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आप इसको ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मींस हम प्राइवेट सेक्टर में, वो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी अपेरेंटली यही कर रहा है। लाइक फर्स्ट वो लोग थे जिन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया, म्यूचुअल फंड को। देन वी आर दी अदर एएमसीज आर दी सेकंड लाइक फॉलोअर्स हैं कि उन्होंने इस चीज को लेके आए हैं। बिकॉज आप ऐसे समझ लें कि इनिशियली कौन सा बैंक होता था? नेशनल बैंक होता था, उसके बाद एससीबी भी आ गया, यूबीएल भी, एमसीबी भी है, तो डिफरेंट बैंक्स अवेलेबल है। इसी तरीके से अब पहले एनआईटी होता था, उसके बाद अब डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज अवेलेबल है। वन ऑफ इज यूबीएल फंड मैनेजर्स। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, एवेन्यूज ऑलमोस्ट सेम। जी, sorry, are there any more questions? एक किसी ने कमेंट किया हुआ है, अगर मैं अभी देख रही हूँ, गुल्लक और कमिटी अकाउंट्स, अगर सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आंसर कर देती हूँ। जिस तरीके जी। से स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि सेविंग्स के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका रिटर्न्स का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप सेफ साइड भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कमेटी लगाते हो, आप मंथली वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हो 5,000 10,000 और एक लमसम अमाउंट आप 1 साल बाद ले रहे हो 1 लाख रुपए। सिमिलरली अगर आप यूबीएल फंड मैनेजर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स आप कह सकते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने अगर रेगुलरली या मंथली बेसिस के अंदर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हो, तो आफ्टर 1 ईयर आप उसके 1 लाख नहीं रिसीव कर रहे, या आफ्टर 2 ईयर आप उसको इस तरह नहीं रिसीव कर रहे। और सेकेंडली सबसे बड़ा बेनिफिट आपका यहाँ पे ये होता है कि आपकी ये जो अमाउंट है डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रही होती है। कमिटी आपको पता है आपको 1 साल बाद वापस रिसीव हो रही है, लेकिन आपकी अगर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, आपका 1 साल बाद कंप्लीट हो जाता है और आपको उस पैसों की जरूरत नहीं है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको 6 महीने बाद उन पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उन 6 महीने में जमा हुआ है वो प्लस उस वक्त तक का प्रॉफिट आप उसे भी ले सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रही होती है। तो एक तरह से आपको यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ आपको रिटर्न कुछ ना कुछ तो अर्न आप करके ही जाओगे। तो कमिटी हो या आप गुल्लक की बात करें, तो वहाँ का एक कंपैरिजन मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बिल्कुल। So, well, thank you, everyone. I think this is a very interesting session, and I hope more and more women जो ख़वातीन हैं हमारे पाकिस्तान में बाहर try to ask more questions और अपने आप को educate ज़्यादा करें on क्या हमारे available options हैं. You know, just say like UBL Fund Managers is one, Uran is a female-led enterprise. Or, you know, more and more financial independence is becoming more and more important because people are becoming more aware. हम अपने आप को ज़्यादा educate कर रहे हैं, हम अपने family में, हम अपने बड़ों को भी educate कर रहे हैं. उस हिसाब से हम अपने बच्चों को भी, छोटों को भी educate कर रहे हैं. That, you know, nothing should hold us back, and it shouldn't, because we live in a world with a lot of options, and alongside the options हमारी ये भी availability है that कि एक explanation भी अगर आप you know जानना चाहते हैं तो वो भी हम offer कर रहे हैं. ज़्यादातर ये सब services भी offer कर रहे हैं. So of course, happy investing and happy Women's Day to all the wonderful women out there. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much, team. Thank you. Hafiz. Thank you. खुदा हाफिज. Allah Hafiz.